वेलकम बैक टू चेसिंग द टारगेट. लेट हो गए हम लोग, ऑब्वियसली 1 hour and 42 minutes लेट है, बट हैप्पी बर्थडे फर्स्ट ऑफ ऑल to not if the greatest batsman of India, Virat Kohli. I mean, if not, I mean, बहुत debatable चीज़ है वो. A lot of people have different suggestions. Some people say Tendulkar is the greatest batsman. Some people who like technically they say Rahul Dravid, but some people who like chasing, who like to call him his daddy, Virat Kohli. First of all, happy birthday to him. पंटर जल्दी आओ यार. सवालों पूछ रहा है. Happy birthday Virat Kohli, King Kohli, the chase master, the modern day great, the best cricket batsman in the world right now, all formats. Virat Kohli, happy birthday to him. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to King Kohli, happy birthday to you. Yeah, and this is birthday and they're playing a World Cup game as well, so happy birthday Virat Kohli, man. It's going to be probably birthday celebrations. मुस्ती भाई जिंदाबाद. अरे कोरा के स्पोर्टी बेबी व्हाट्स अप भाई. आप आके मेरे को एनर्जी दे दिए. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. टाइम हो गया आपको देख के. बट यस, हैप्पी बर्थडे टू विराट कोहली एंड होपफुली सी वी अ क्रैकिंग सेंचुरी फ्रॉम हिम. दैट्स व्हाट एवरीबॉडी इज होपिंग. केक काटेंगे उन्होंने, ऐसा दिख रहा कल ग्राउंड पे. एक वो हो रहा था कि everyone gonna wear Virat Kohli masks in the ground. 70,000 people were gonna. वो कुछ आइडिया था नहीं, वो नहीं है. वो खारिज हो गया. उन लोगों को टेक्निकली बोले कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. So a few people might be ending up to think, I think केक का भी I think अलाउ नहीं करने वाले कुछ. I mean ये कल तक या 2 दिन पहले तक की खबर जो है मैं वो बोल रहा हूँ. मे बी थिंग्स चेंज इन इंडिया एवरी अदर मिनट, सो आई एम नॉट प्रीटी श्योर क्या है. बट यस 49th सेंचुरी परहैप्स कल देख सकते हैं. या आई मीन देख तो सकते हैं, रोज देख सकते हैं. ऑलमोस्ट लास्ट गेम में भी ऑलमोस्ट हो गया था. उससे पहले जो 95 मारा था वहाँ पे भी हो सकता था न्यूजीलैंड के खिलाफ. तो ही इज इन रियली गुड फॉर्म. वी कैन सी अ सेंचुरी. That's what the whole of India wants. Lekin they're up against a very good South African team. One of the top teams of this World Cup. Bhai, underrated team. And जो खेल रहे cricket उन लोग very entertaining too. Positive cricket और aggressive cricket. जो batting कर रहे हैं उन लोग this is what we expected of England. South Africa is doing that right now. तो इसलिए तो England की उतनी कमी महसूस नहीं हो रही because South Africa जो batting कर रही भाई, जो strike rates के साथ खेल रहे 400 लगा रहे. I think उनका average 350 दिख रहा है मेरे को like every match में. तो वैसा अगर आप cricket खेल रहे तो of course you going to entertain crowds and everything. And you're going to give India a tough opposition. The only thing is that India is on another level right now the way they're playing cricket, and South Africa did lose to Netherlands. तो वैसा थोड़ा सा gap हो सकता है, लेकिन South Africa is also a very good team playing spin. Yeah, 100%. I think South Africa is basically saying what England could have done here. South Africa is doing it just much better right now. South Africa, yes, they're an incredible sign. Quinton de Kock, जैसा आप बोले, he likes to set the tone. And अपन देख रहे हैं. I mean, no one expected Quinton de Kock except this guy right here. I mean, I don't know if you put it knowingly or unknowingly, but whatever, तुक्का बोलो, तुक्का बेहतरीन है. He can be a great gambler, but I think Quinton de Kock right on point and the money. Then you've got Markram, who's excellent player of spin as well and the pace bowling as well. Marco Jansen is having a worldly tournament. I think उन्हें बहुत बड़ा differential factor हो. Klaasen का तो भाई सबको मालूम था. It wasn't just me. I'm sure everybody knew Klaasen was the best batter. अगर आप क्रिकेट देखे ये साल, कोई भी लीग उठा लो, आप IPL उठा लो, आप वो साउथ अफ्रीकन लीग उठा लो, आप वो भी उठा लो, अमेरिकन लीग, MLC में भी मारा सेंचुरी क्लासन. तो आप उसको तो कहीं नहीं. क्विंटन डी कॉक का क्या है, आई फाइंड हिम एन एक्सेप्शनल टैलेंट. आई रिमेंबर 2020 द कोविड IPL ही वाज प्लेइंग ब्यूटीफुली, बट आई नेवर थॉट ही लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशन. आई थॉट दिस इज हिज ईयर, स्पेशली द फैक्ट दैट ही इज रिटायरिंग. तो का तो है 100%. मैं आई एम नॉट अ प्रेडिक्शन मास्टर. लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अराउंड द पिच. सुदीप दादा नहीं आए पिच पर बोलने, बट एयर क्लैरिटी के बारे में आई थिंक कोई पूछे मुझे तो एयर क्लैरिटी वो जो मेरे को समझ में आ रही 160 बता रहा है. तो आई डोंट नो इफ दैट गुड क्वालिटी ऑफ एयर और बैड क्वालिटी. इट सेज एयर क्वालिटी 160, तो आप हिसाब लगा लो. बट यस, पोल्यूशन का बहुत रिसेंटली मसला प्रॉब्लम हुआ है मुंबई में. ये बात रोहित शर्मा से भी पूछे थे कि भाई पोल्यूशन के बारे में बोलो, फ्यूचर जनरेशन नॉट गोइंग टू बी एबल टू ब्रीथ जो तरीके से. एंड दिल्ली में बांग्लादेश की और श्रीलंका की प्रैक्टिस कैंसिल हुई बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. पोल्यूशन इज बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया. भैया मेरे साथ एक बहुत बड़े अरे भाई मैं वजन करके आता हूं. मिस्टर जैन आजम, आई कांट बिलीव ही इज ऑन आवर पॉडकास्ट टुडे एंड लिसनिंग. आज हमारा सेकंड लाइव है और अब तो ज्यादा एनर्जी मिल गई मेरे को. ही इज आस्किंग, इज बॉबी मोर टैलेंटेड देन कोहली? किंग बॉबी इज स्टिल अलाइव इन द वर्ल्ड कप. हां, थोड़े लोगों के लिए घंटे के किंग है, थोड़े लोगों के लिए I mean he is a very good player according to me and Mustafa. He but not up to Virat Kohli standards obviously. Virat Kohli भाई अलग चीज़ है.
मैच विनर है. I mean आप बोल सकते हैं फ्लैट ट्रैक बुली आपकी ज़बान में, लेकिन I don't think he's just a flat track bully. He's done it in England, he's done it everywhere. Babar Azam, you know that he's a bachelor, right? Yeah, 7.5 लाख की शेरवानी खरीदे. अभी आप साथ ही अपने घर के रोड नंबर 10 पिच खरीदे. सब बैचलर है उन्हों, और इमरान खान भी बैचलर थे. अरे वैसे 50 बार सुन लिया मैं. चाहे मैं बोल रहा आपका इमरान खान बैचलर थे, बाबर बैचलर थे, और एक बार बारिश जब हुई थी, बारिश आज हुई, और इंजमाम जब खेला था और इमामुल हक आज खेला. तो ये भाई मगर एक चीज मैं बोलता हूँ, खुला बोलता हूँ, मैं कंपैरिजन नहीं करूँ, मगर बाबर को पाकिस्तान को क्या क्या की बोल रहे थे, आज भाई 400 मतलब जो भी है जो चेस करने के किस तरीके से हमारा ने फखर जमान कुत्तों की तरह हमारा चप्पल लेके. कुत्ते भी कम नहीं यार, कुत्तों पे भी इतना बुरा नहीं मारते. एक टाइम पे रहम आ जाता. No, but he नहीं खैर all jokes aside, I mean I'm not comparing anyone to dogs or something, but he smashed बहुत जबरदस्त मारा, बहुत. Like, and every ball was going for six. Zayn is the one who told me this guy is the greatest player right now, and उन्हें like he reminded us of like the other old Pakistan teams. But he's done that in the past also, right? Yeah, he's done it in the past, but I think today what he did, especially they were down and out, कोई भी chance नहीं दे रहा था. 400 खाली है, कौन मारेंगे यार, वो जान दो बोल के, and the way they batted it was really good. But something like faulty with New Zealand's bowling as well. अपन देखो like even in Dharamshala and Australia के against 380 दे दिए थे, but batting has become a very strong asset of New Zealand particularly. Sorry, batting is? New Zealand का strong asset of batting हो गया, back end of bowling होता था. अब bowling भी होता, मगर आपको conditions भी देखना पड़ेगा, right? ये conditions में या they're not bowling favorable, फिर Henry नहीं है, Ferguson नहीं है, तो these are problems adding to their like you know the decline in bowling. अगर आपके पास fully fit players और उनका best bowler Matt Henry खुद injured हो गया, उन्हें भी injured हो गया. तो Zayn बोल रहा Bobby at the wheel, but the car is fueled by Fakhar. Absolutely right, man. Bang on. You're a poet. You're the Shakespeare of Hyderabad, man. भाई ये pollution की बात कर रहे हैं, जबकि UN की रिपोर्ट कहती है in Dhaka has the most polluted city in the world. या बट अभी ढाका में वर्ल्ड कप नहीं हो रहा ना बॉस, इंडिया में हो रहा है. और इंडिया के हिसाब से अगर मैं देख रहा हूँ तो इंडिया इज पोल्यूटेड. मुंबई में भी बोल रहे थे पोल्यूशन, और हम लोग दिल्ली में अभी गए थे 2 हफ्ते पहले. बारे में मैं तो सांस नहीं ले सकता था. नहीं मजाक कर रहा हूँ. वी वर फाइन एट दैट टाइम, बट आई डोंट नो एकदम से बढ़ गया. आई डोंट नो व्हाई, बट वो हिसाब से अभी श्रीलंका एंड बांग्लादेश दोनों अपने प्रैक्टिसेस कैंसिल कर चुके हैं. तो पोल्यूशन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम राइट नाउ. एंड एन अर्थक्वेक भी आ गया था दिल्ली में हाल में, तो आई थिंक वो भी एक प्रॉब्लम था. ओह अर्थक्वेक भी आ गया. लाइट आई थिंक. Also in future there won't be any cricket in winters as players will find it hard to spot the ball in smog, and they'll find it hard to breathe also. England players भी बोले थे रूट उन लोग, काफी अदर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी बोले कि they're finding it difficult. प्रैक्टिस भी कैंसिल हो रहा. मोहम्मद आसम भाई बोले अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जग रहे हैं भाई. अगर फखर नहीं होता पाकिस्तान हार जाती भाई, बिल्कुल. मतलब उन्हें वन हैंडेड सिंगल फखर नहीं होती तो एक्सेलरेशन नहीं मिलता था. ये बात मान सकता हूं मैं. हार जीत तो अभी भी आप नहीं बोल सकते. खैर बोल सकते हैं, बोल सकते थे, बिकॉज देखो इमेजिन उन लोग 370 ने चेस करे, वो भी इससे ऐसा ट्रैक था जितो 400 था, दे वर ऑन ट्रैक ऑफ चेसिंग 400. भाई एक्सपर्ट्स बोल रहे कि कल सिराज की जगह पे अश्विन को खिलाते, क्या ये सही है? ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं मैं कौन सा एक्सपर्ट हूँ, मैं थोड़ी एक्सपर्ट हूँ. नहीं भाई कल कोलकाता में मैच है, टर्न ऑन ऑफर है बोल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए. लेकिन दिस इंडियन टीम इज ऑल अबाउट हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, एंड अगर है टर्न ऑन ऑफर देन अश्विन इज अ पॉसिबिलिटी. हार्दिक पांड्या तो नहीं है अब, तो उनका तो चांस ही नहीं है वर्ल्ड कप आने के लिए. दैट इज अनदर प्रॉब्लम दैट वी हैव टू डिस्कस, मैन. हार्दिक पांड्या इज योर ओनली ऑलराउंडर, इज सच अ टैलेंटेड प्लेयर, बट ऑन सच अ बिग ओकेजन. I know this injury is unfortunate, but this has happened with Hardik Pandya a lot. I mean, this one is very unfortunate. It's not related to his back, so I think this is negligible from this aspect. कि भाई he dove to, you know, and then उसका जो ankle है वो twist हो गया, which turned into a ligament tear. तो you couldn't see that coming. हाँ, lower back की problem होती तो मैं तो पुकार देता था, अभी उसकी पीठ पे जाके मैं ठंडा मारता था. लेकिन I think this is something to do with ligaments, and I'm a little bit of an expert in that department, क्योंकि वो बहुत unpredictable injury है. आप चलते चलते अगर ankle twist हो गया तो फिर you know पानी जम जाता, बहुत से चीज़ें होती है उसमें, healing process होती है, and then आपको बहुत टाइम लगता है, you know, just to get things on track. Run up भी immediately he tried to you know bowl another ball, but फिर उसका you know फिर पाँव सूझ गया, within second आपका पाँव सूझ जाता है उसमें. तो it's hard. Like I would like sympathize with him, and yeah, हार्दिक पांड्या ये टाइम उसकी गलती नहीं है इस इंजरी में था.
उसकी गलती नहीं, अरे गलती तो भाई कोई इंजरी हमें लोअर बैक का देखो, अपन रेस्ट दिए, वो करे, उसको 4 ओवर लाए, 8 ओवर लाए, मगर मैं बोल रहा हूँ कि गलती इंजरी कभी आपकी गलती नहीं रहती उतना, लेकिन अनलेस आई डोंट नो मैक्सवेल का आप शायद बोल सकते गोल्फ बैट से कहीं तो भी गिर मगर जाता वो भी है उसकी, मगर उसकी भी गलती नहीं है, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि बहुत इतना इंजरी प्रोन है, कुछ तो है हड्डियों में जो नजर है because like you know he's your main guy and everything, and whenever there's a big tournament or something, either he's not 100% fit or he can't bowl or he can't bat, कुछ ना कुछ issue है, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो है problem यार, like and he is the one who's the glue to the team. They're still winning without him, no doubt, लेकिन मेरे को तो कभी-कभी समझ में नहीं आता, it's hard to digest when such a quality player is not it's like a Neymar situation, right? Like Neymar is talented but काफी injury prone रह चुका है and stuff like that. So I think I know where you're coming, but again हार्दिक पांड्या की जो ये वाली particular injury, it was just in play and you can't really do it. And if it was a lower back, again the previous injury अगर होते तो बोलते थे भाई NCA क्या कर रहा, BCCI team क्या करी, but it was not that. And yeah, I mean you can't pretty much do much, and I'm pretty sure he is the most frustrated out of all of us. World Cup जैसा which commentator, Ravi Shastri or someone, I think Sunil Gavaskar said it's a dream for every player to play a World Cup, and I'm pretty sure he's devastated. 100%. I mean, our prayers are with him, and hopefully he gets speedy recovery. And Prasid Krishna aa gaya abhi. I don't know what you guys think about that replacement, but they're actually going मतलब bowling को तगड़ा करना जरा bowling. हालांकि press conference में रोहित शर्मा बोले थे we're still putting 3 seamers and 3 spinners on the table. But with Prasid Krishna entry, if Akshar came in, then I would probably think they're more to the spin department, or maybe trying to go batting heavy. But either Prasid आने के वजह से, and then hinting that Virat might get to bowl on his birthday tomorrow. So भाई इन स्विंगर बोल रहा था मैं, right? रॉन्ग फुटेड इन स्विंगर्स. इमाम होता तो प्रोटीन की कमी के कारण से 60 में 50 होते हैं बिल्कुल भाई. इमाम होता तो भाई 500 हो जाते थे. फील्ड में उतनी बड़ी उन्हें इशू है. And again, like Imam's intent, even the test matches that I was seeing against Sri Lanka, I mean he's not the most aggressive on a test में भी sweet time लेके खेला, चलो test match है वो, but फखर है just different mentality today. अगर आप उसकी confidence देखते यार, उन्होंने तो बॉर्नविटा भी गया क्या भी गया समझ में नहीं आ रहा, अलग लेवल मारा था, अलग छिक्के मारा था, एक हाथ बस था और उसके आज उसका बस चले तो लाइक बैक टू बैक सिक्सेस स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. आई थिंक भाई उसका वन हैंडेड भी उसको देख के आपने को बाबर को भी जोश चढ़ के मारा बाबर, और उसका जो वन हैंडेड था आई थिंक वाज बिगर देन बाबर 6. बाबर के 2 हाथों में आकर का एक हाथ है, बॉल हवा में गया, मैं बोला अरे इन्हें तो गया दर पैसे नहीं चिन्नस्वामी है बोल के, एंड देन इट जस्ट लैंडेड पास द बाउंड्री रोप. वही हुआ था. ये हार्दिक 6 महीने बाहर रहता है. This was England's best fight, leaving their win against Bangladesh. As a coach, as captain, what changes would you make in near future, or management changing the coach and captain? Look, I think they have to take it slow a bit. Radical changes की ज़रूरत I don't think उतना है, because this is the same England team who changed cricket. This is the same England team who has won a World Cup and T20 World Cup, right? This is the same England team that people are following their template right now, whether we like it or not. So I think yes, you have to make changes. One thing is like if Ben Stokes wasn't fully fit, no matter what it is, I don't think they should have called him up. Even though I would love to see him, maybe myself would have called him up, but आपको ये decisions लेना पड़ता, because England they've seen in the past they've dropped big players because of injuries and stuff. They still won World Cups. So I think they should have they have still exceptional talent coming through. They have Harry Brook, they have Phil Salt, maybe bring back Jason Roy as well. That could be an option. And bowlers पे भी work करना पड़ेगा. I think they need to focus on the spinners as well. The quality of spinners a little bit on decline for me personally. Like Moeen Ali has been बोलते ना end of an era जो मुस्तफा बोल रहा था. Livingston is not one that you can depend on bowling a full quota of spin. I think he's not the greatest with like variation and a proper. I think maybe that's where somewhere I feel England is like fast bowling and still Vokes निकाल ले रहा wickets, आपको Wood फंसा दे सकता matches and stuff like that. But मगर उन लोग भी नहीं कर रहे हैं. like turn on offer या ये वो spin is going to play a crucial. मगर आप देखो वो भी नहीं कर रहे थे. वो लोग कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहे. बैट के साथ भी जो उनको अच्छा पिच मिला मुंबई में वो भी नहीं कर रहे कुछ भी. उन लोग बैट के साथ बैटिंग का तो छोड़ ही दो. और वो these pitches do suit them. ऐसा नहीं है कि सूट नहीं करते. का मसला हो गया उन लोगों के साथ. सबका टैलेंट चलेगा. वो ऐसा रहता नहीं कि like just go through a very dark period, end of an era kind of thing. I think slowly they will make changes. They'll have to implement. Also a very big thing is आज उन लोग बोल रहे थे commentary पे, sorry to cut you there, but उन लोग बोल रहे थे कि I think Ian Bishop was doing the comparison. I think England played like 50 ODIs. They were 50-60 ODIs between 2015 and 2019, and now they only played like 20 or 19 or something like that. So they also didn't prepare as much. They didn't give it as thought. Like I mentioned before कि उन लोग पूरा जो अपने resources थे टेस्ट क्रिकेट में डाल दिया, baseball के ऊपर डाल दिया. और 2015 में क्या कर रहे थे, like they put everything in ODI and test उनका बेकार था. जो रूट सफर करा as captain, और यहाँ पे बटलर is suffering because all the focus was on test cricket.
year of the Ashes. This was the year of I can clearly see. I mean, I really listen to a lot of podcasts from England, right? Like the BBC Test Match Special. I listen to the Sky Sports. There is quite a few podcasts. There's one with Adam Gilchrist and Michael Vaughan. You guys can check it out. It's called Club Priory. They do World Cup special too. So whatever I can see how these guys talk, especially English, ex-players and stuff. For them, Ashes is much bigger. Even though they're very upset right now कि इतना ऐसा खेल रहे. So उन लोग पूरा investment वहाँ डाल दिए in the last few years. And this is not an excuse. I'm just telling you these are reasons why they need to balance their act. I think वो हिसाब से then या तो ये है कि भाई आप एक format pick कर लो कि जो root जो इंडिया में dominate कर रहा है, you know him better than anyone. He's not looking like the Joe Root of what we used to see in the past कि उन्हें आके century मारा या चलो baseball में भी he was looking good and during the test he was playing with a more aggressive intent, but इधर आके बहुत slow खेल रहा है across the pitch and the line of the ball and he's trying to hit something and वही LBW जो predict करे थे उसका. He doesn't look like the Joe Root we've seen. Bairstow looks like एक साल के बाद इंजरी के बाद उसको आप एशेस भी खिला दे रहे, आप उसको वर्ल्ड कप भी खिलाइए. हैगर्ड है, इससे अच्छा फिल सॉल्ट को ला लेना था. And then your bowlers again, I think you can't do much about the bowling. I mean you have one of the best bowling attacks, but for me the spinners are probably just something that England can work upon. That's about it. Like batting though you can't control that, like Josh Butler and all of these, you can't get better batsmen to play in India for your own England squad because they know these pitches, but it's just everybody's out of form एक साथ. They should have called Abhishek Sharma or Shivam Dube. Abhishek Sharma did well. He is more of a batting all-rounder. I agree with the Shivam Dube. I don't think even Punter is saying Shivam Dube. I'm very surprised. I when Faiz asked me this पहले session में मैं Shivam Dube का ही नाम लिया. Only because like for like है बोल के, not anything else and everything. Because if you need to replace an all-rounder, you have to replace him with a fast bowling all-rounder, right? You have to. अब Shivam Dube is not that level. ये वो maybe they don't have confidence in him. I completely agree. But that's what normally teams do. Right, if Stoinis goes, Marsh will come, Marsh goes, this guy will come. It's like that, right? That's what you would normally do. अब लोग बोल रहे हैं अक्षर पटेल. अब मेरे को प्रॉब्लम ये है कि जडेजा अक्षर पटेल एक साथ मेरे हिसाब से नहीं खेल सकते टीम में. अगर जडेजा इंजर हुआ फिर आप अक्षर पटेल को लेकर मैं हाँ सुंदर में माइट बी अ बेटर ऑप्शन. द ओनली रीजन मैं सुंदर नहीं बोल रहा हूँ बिकॉज अश्विन है. सो मैं ऑलवेज लाइक आई एम लुकिंग एट लाइक फॉर लाइक, राइट? अगर आप वो करें जो आप टू ऑफ द सेम, आप क्या करेंगे उसके साथ? हार्दिक का तो कोई लाइक फॉर लाइक वैसा नहीं है, राइट? मगर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर उन्हें बॉलिंग करा उसको डाल दो टीम में. 11 में नहीं खिलाना जरूरत नहीं है, बट जस्ट कीप हिम इन द टीम. बट दैट्स अ वेरी बिग रिस्क, माइंड यू. मैं बोल दे रहा हूँ बहुत कॉन्फिडेंस. तो विराट का भी बॉलिंग का ऑप्शन आ गया, तो आई डोंट सी एनीवन. तुम सही में समझ रहे हो? डाल लेता हूं, कल डालने वाला है. देखो कल डालता हूं, हैप्पी बर्थडे बोल के विकेट ले लेता हूं ऐसा. आपको मालूम है लास्ट टाइम सेमीफाइनल में डाला था, विकेट लिया था ना, धोनी दिया था. हां, मगर मेरे को आई डोंट नो, लाइक आई डोंट माइंड इफ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा बॉल, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. अगर ऐसा करना है तो जुगाड़ कर दो. विराट कोहली बॉलिंग फॉर द फैंस, फॉर द फैंस. नहीं, मगर मैं तो बोल रहा हूं दोनों को दलाओ बॉलिंग. अच्छा दलाओ. हां, ये गेम और नेदरलैंड्स की गेम आप तो क्वालीफाई हो गए. लखनऊ के उसमें तो उन्हें फुल प्रैक्टिस करे थे ना, लखनऊ के उसमें नहीं दलाओ बॉलिंग बिकॉज़ कब जरूरत पड़ सकती. सौरव गांगुली नहीं करता था बॉलिंग, लाइक यू नो आपको जरूरत पड़ सकती. विल पंटर सिंह डुबे और अक्सर फहमी मुस्ती भाई फेवरेट आईएसएल टीम. मैं आईएसएल नहीं देखता हूँ, लेकिन हैदराबाद एफसी है, बट मैं देखता नहीं होता. मैं सऊदी लीग ज़्यादा देखता हूँ. विल इंग्लैंड क्वालिफाई फॉर चैंपियंस ट्रॉफी? I don't think so. I mean, unless they beat Pakistan, but Pakistan have to win that. Ooh, it's getting closer for like the end. I mean, 2 हफ्ते बाकी है, 2 Sundays away है from the final. Final? Yeah. Oh my God, 2 weeks. Yeah, 2 weeks. There's a flight to Calcutta 5 AM. मैं भाई को convince कर रहा हूँ, मगर नहीं हो रहा convince. Super chat भेजो. I would. कार्तिक भाई बोल रहे, I thought they would call back Tilak Verma, but you can't trust his bowling. Shivam Dube did bowl in Asian Games. He did good there. Abhishek Sharma had great run in Emerging Cup and current SM80. And I think, look, if they're gonna go, they probably would go Tilak Verma because he played in the Asia Cup and he was part of the squad. तो उन लोग शायद मैं भी समझा हो जाएंगे, but looks like they want to strengthen their bowling. But what is the role of Shardul Thakur then? If even Prasidh Krishna is there, then what will they do? Yeah, I mean, Shardul maybe it's one bowler too many, you think, or do you feel we're a batter light because there's only Ishan Kishan right now on the bench? Yeah, Ishan Kishan and Ashwin is on the bench right now. Yeah, then why नहीं है batting? Batting तो नहीं है, but with Surya added on, I mean, batting settle हो जा रही है वहाँ पे in a way, because अगर आप देखो रोहित शर्मा, शुभमन, विराट, मगर सूर्या, अय्यर and सूर्या 6 पे खेला, जडेजा 7 पे खेला, राइट? हम यार इनफ बैटिंग, कुलदीप भाई भी कर लेते कभी-कभी. हां, अभी तो बुमराह भी करा था, परसों कर लेता, 16 रन मारा था. सो या आई मीन बैटिंग हैवी नहीं है, हेवीली डिपेंडेंट नहीं है आफ्टर 6,
But you have good 7 batsmen. I think that's enough for a ODI. ये कौन सी लॉजिक है हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट प्रसिद्ध कृष्णा? लॉजिक ये है कि भाई आप बॉलर शॉट नहीं बनना चाह रहे, एंड आई जस्ट थिंक यू आर ट्राइंग टू फिल इन द वॉइड. आई डोंट सी प्रसिद्ध कृष्णा पर्सनली प्लेइंग, बिकॉज शामी, बुमराह एंड सिराज को कोई रिप्लेस नहीं करेंगे unless इंजरी खुदा ना खास्ता हो. बट हाँ मेरे को भी पॉइंट नहीं दिखा, लाइक अगर आपके पास ठाकुर है ऑलरेडी, बिकॉज़ इन आयरलैंड में खेला ना, एंड देन ही बॉल्ड प्रीटी वेल. आई थिंक तो फिर संजू सैमसन को बेचारा उन्हें इतना फिर रहा टीम के साथ, उसको वर्ल्ड कप को दिखा दो, थोड़े होटल्स दिखा दो, उसको भी थोड़े फैंस दिखा दो भाई. लाइक उन्हें क्या गलत कर रहा है? वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस उन्हें अलग दिन इंस्टा स्टोरी डाल दिया. हम लोग मिले थे यार, आप मिले थे लिफ्ट में गए, मुस्तफा भाई हाथ मिलाने गए, ऐसा कच्चा हो गया था मुस्तफा भाई का. No, he is a very nice guy bro, like very nice guy. Yeah, like नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको किसी को बिठाना था बेंच पे तो फिर आप सैमसन या तिलक वर्मा, मैं तो सैमसन को बिठा देता था. एक्स्ट्रा बॉलर के लिए हो गया होगा. एंड उन्हें थर्ड कीपर हो जाता है टीम में. ऑनेस्टली लाइक फॉर लाइक आपको ऑलराउंडर लेना पड़ता है. इधर मीडियम पेस, इफ यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन शिवम दुबे देन यू गो टू इधर अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल. या if you go like Shivam Dube and like Abhishek Sharma, that's going just too far. So that's why I think they just took Prasidh Krishna based on the fact कि Ireland में खेले. Did he play the Australia series as well? I think he played, right? Just before the World Cup, the Australia series खेले थे. Prasidh Krishna? Yeah, he played. So I think that's also one of the reasons that he was fresh off the boat or whatever. He played in Ireland, right? Yes. Also, Ireland and Australia. That's what I think. मुझसे भाई रोहित बोलता है फिंगर इंजरी के बाद ऑफ स्पिन करना छोड़ दिया ताकि बैटिंग पे असर ना हो सके. अच्छा, लेकिन भाई उन्हें तो शुरू करा करियर बॉलिंग के साथ. अगर आप देखिए पहले उसका करियर ऑफ स्पिन शुरू करा, फिर उसको बैटिंग. ही सेड दिस इन इंटरव्यू ऑल्सो कि मैं बॉलर ही था पहले, फिर मेरे को बैटर बनाए. तो बट अगर हाँ इंजरी है तो फिर मैं समझ सकता हूँ. अगर इंजरी है तो मैं समझ सकता हूँ, बिकॉज नहीं तो उन्हें हैंडी ऑफ स्पिनर है यार. हमारे लिए हैट्रिक लिया डेक्कन चार्जर्स के लिए इन द IPL. हैंडी स्पिनर ब्रो इफ नीडेड. माफ कर दो मुस्ती भाई, ठाकुर नहीं. नहीं ठाकुर तो बिल्कुल नहीं. I don't see Thakur, like honestly Thakur doesn't look that fit to me as well. I mean he has to work on his physical abilities as well, like train a bit more, because what I'm seeing with him is like I think he's grown in weight in the last few weeks, and that's not a good sign as a cricketer. I think he needs to be a little bit more fit for me. And also like the thing with Shardul Thakur, bowling doesn't give you as much confidence. Now Shami is bowling like that. अब ठाकुर को लेके आगे so public गुस्से में आ जाएंगे कि भाई आप ऐसा कैसा कर दिया इन लोग विकेट. ठाकुर का वही रोल है जो हारिस रऊफ का रोल यहाँ पाकिस्तान में है. पिट जाओ और विकेट निकाल लो कहीं ना कहीं से. That is what they give him the license to be short. And अब देख लो उन्हें लेग कटर जो डालता है एकदम से उन्हें उकसाता बैट्समैन को, कम आउट ऑफ द क्रीज एंड बैट, एंड देन टॉप एज पड़ जाता है, एज मारता है. ही नोस हाउ टू टेक अ विकेट बट ही विल गो एक्सपेंसिव. एंड बैटिंग IPL की इनिंग्स लास्ट थी, वो IPL की इनिंग्स थोड़ी बहुत फेक थी. I mean 60 मारा, उसके पहले उसके बाद में कुछ नहीं मारा उन्हें. और एक मारा ऑस्ट्रेलिया में मारा. Sorry, I missed previous messages. Karthik bhai said, I'll take it. England media was so pissed about that Bairstow run out. How they reacted was so shocking. But what was more shocking now is that there hasn't been much criticism of their World Cup dismal performance. There has been. I'm pretty sure Nasser Hussain's called them out. I'm pretty sure Kevin Peterson must have called them out. The thing with that thing was वो तो Ashes में हुआ और वो ऐसा it became a crucial factor. That's why it was more raised. But definitely you have to criticize them. वो तो मैं भी like मेरे को पसंद प्लेयर है उन लोग के, लेकिन मैं तो criticize कर रहा हूँ. आप देखो साउथ अफ्रीका जो ईस्ट से खेल रहे हैं, not ईस्ट बोलूँगा but it's brilliance as well. But you can always look at England in the same direction, right? England आप वही सोच रहे हैं कि इंग्लैंड ऐसा खेलना था, but साउथ अफ्रीका कैसा खेल गए जो टीम दूर तक किसी के टॉप 4 में नहीं थी. If India, और एक किक है, out of fantastic 4, Virat and Kane proving to be in their root and Smith not a great World Cup. Definitely not. It's been very disappointing punter, especially जो batting कर रहे हैं, Joe Root and also Steve Smith. Did he say Fab 4? Yeah. Fab 5. Fab 5. तो वही है मेरे हिसाब से कि at the world class players, all formats में, we expect them to perform, and Root and Smith are also good players in these conditions too. It's not and that's what the shocking thing. Like this time of the year, I don't know why the pitches look very difficult for each team. Like particularly, आप देख लो England and even to an extent like पाकिस्तान के इन लोगों के लिए ये pitches बहुत difficult दिख रहा है ना, कि पाकिस्तान तो subcontinent में ही है. बांग्लादेश के लिए इतनी tough दिख रही है pitch, श्रीलंका के लिए इतनी tough दिख रही है pitches. I don't know. It looks like it's समथिंग लाइक कुछ और ही खेल, लाइक मूविंग कंडीशंस है या ऐसा कुछ है नहीं. बट बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका पर्टिकुलरली इनला तो स्ट्रगल करें, एंड देन इंग्लैंड एज वेल. हालांकि इट्स जस्ट लाइक मोस्टली इट्स फ्लैट विकेट्स, इट्स जस्ट अ हिंट ऑफ मूवमेंट, यू जस्ट नीड टू टेक योर टाइम. एंड वही आप देख लो इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, लुक हाउ दे आर प्लेइंग.
I think What's the part of cricket? especially I think India South Africa जो bowling कर रहे हैं they're exploiting the conditions really well because we've seen Australia also पिटे उन लोग ऐसा नहीं है कि नहीं पिटे न्यूजीलैंड के खिलाफ भी 380 खाए उन लोग almost New Zealand chased it down so there's been worries in a lot of bowling attacks and not I think just India like of course it's their home conditions and it's those three bowlers are at the top right now they're all in form they're in peak and then the spinners Jadeja and Kuldeep the way they are putting pressure and you know creating chances it's putting a lot of pressure on the opposition team so as a unit India's bowling is pretty much sorted South Africa also like you know Maharaj is coming into the party as well he's bowling well Shamsi came in he bowled well too so these bowl thing but other teams in general have struggled I would say Afghanistan is maybe a slight exception but उन लोग भी खाए थोड़े runs इधर उधर इंडिया के खिलाफ तो बहुत मारे थे but so these conditions are not the easiest for bowlers but yeah at the same time you want them to try different things because you saw Wasim Junior today the way he bowled like it was like it was much more better and Haris of Shaheen just lost the plot completely Shaheen in particular then Haris as well and Haris again वही है कि variation lack कर रहा हूँ फिर है भाई कोई बैट्समैन इंजर्ड होगा ऋतुराज जाएगा विकेट कीपर देन सैमसन वुड कम हार्दिक पांड्या नेमार क्रिकेट का फैस पर वही बोल रहे थे हार्दिक पांड्या नेमार ही है like he has so much potential नेमार चलो फिर भी कुछ तो भी जीत गया नेमार लाइफ में but like हार्दिक पांड्या is like very thing I mean he's won an Asia Cup is what you can say but it's like IPL also he's not been very consistent in his IPL also yeah IPL as well as a captain and a player yeah Musti and Faiz bhai will Afghanistan qualify it's very difficult if Chance they do they've already punched above their weight according to me I don't particularly see it because they're playing two brilliant sides and Australia still need 2 points to qualify Australia will be ruthless when they play Afghanistan in Wankhede and Wankhede is Wankhede mein match I think Wankhede mein yeah so I think there Australia will be if it was in Chennai or something a I'll little be down bit more a little bit more like I'll back Australia over there and South Africa I just would like to see how they want to end the qualification stage after India if they want to sustain that you know top flight subject to कल अगर जीत गए खाना खास्ता but अगर जीत गए तो then they want to finish number 1 spot and then they play number 4 so I think it's a very difficult road for Afghanistan but I'm not going to count them out completely but I'd say it's like 80-20 and अगर New Zealand जीती last game then it becomes like net run rate with Afghanistan or something like that if Afghanistan win too so I mean New Zealand Australia are still in the front runners but Afghanistan and Pakistan are breathing down everyone's neck they have very good chance and to qualify yeah it's like a very 150 runs in New Zealand GT 1 runs in New York so Pakistan has to win by this or that or something like that well it'll come down to that but it's fun how this World Cup has taken a change right so like शुरू में ऐसा था कि अरे भाई कच्चा टॉप 4 ऐसा दिख रहा था इंडिया Australia South Africa and New Zealand but then now you change and look at Pakistan coming in you're looking at Afghanistan coming in you're looking at Australia fighting for their spot so it's become sort of a good change in dimension of the World Cup from what it started out to be Karthik was making a very good point that Mumbai comment don't you think India will miss 4th fast bowler Mumbai Hardik will miss definitely 100% yeah 100% Hardik Pandya that guy was 100% शार्दुल को इसलिए बिठा दिए थे क्योंकि you know then you've got Hardik Pandya to bowl and then Shami आके जो spell डाला yeah I'm 100% Hardik Pandya will be missed up not that much with the bat because we've not seen him bat yet we've not seen him bat yet in this World Cup right एक मैच में खेला शायद पाकिस्तान के खिलाफ आके ने पाकिस्तान कौन सा तो श्रेयस अय्यर आके मारा था और उसके बाद श्रेयस आउट हुए बाद I think थोड़ा बहुत करा था but yeah not full fledged so yeah I think Hardik Pandya in terms of the bowling department will be missed but I think Prasidh Krishna even if he gets a chance to play he'll do decent but with the ball but they won't play 4 fast bowlers out and out yeah I don't think so 4 तो नहीं खेले unless they want to rest Kuldeep bhai or someone just before the final मगर semi-final no semi-final just before the no but he's saying semi-final में no chance yeah of course they'll miss it yeah 100% I thought it's just for like I still have nightmare of India versus West Indies semi-final in Mumbai 2016. It was T20 game, but I felt like India should have gone with 4 fast bowlers. Boundaries were too short. Yeah, I mean the वो ने क्या मारा है वो रसल फोड़ के रख दिए थे ब्रैथवेट फाइनल में मारा था ब्रैथवेट उसमें भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करा शायद मगर रसल फोड़ मेरे को याद है उन्हें दबा के बूम man of course I completely agree with you these like things we still have nightmares of Fakhar Zaman 2017 still have nightmares 2016 2015 Steve Smith man chicken man that was the started at 10 p.m. that game in Canada finished like at 7 a.m. I was in Canada in college at that time पूरा मेरा एग्जाम खराब हो गया next day I think I had a midterm or something so yeah I remember those things
Wasim Akram said Bumrah is different from everyone. He doesn't need any conditions. He will bowl well in every 100% condition. Pitch तो निकाल लेता उन्हें. 100%. भाई उन्हें जो Yorkers डालता, it's so good to watch an Indian bowler bowl like that. We were born, I mean, we grew up in a time where India's bowling wasn't this leading, to be honest. Like we supported them We and started with everything. Javagal Srinath Venkatesh Prasad. Yeah. That was a crazy ad they had also just recently, right? The cred ad. Cred ads, yeah. मगर वो जो bowling lineup था is nothing compared to this bowling lineup, man. No, This I was- mean, that's what I was telling you. Why Jasprit Bumrah is this guy who can bowl on any pitch. Line and length, spectacular. He doesn't need you don't need to tell him. वो बोलते ना जो मलिंगा करता था सिक्का डालो ने वहीं डालता उन्हें वैसे ही bowler है. He's perfected the art of knowing where to land the ball exactly according to the pitch. Number one, number two, he lays the platform for Siraj and Shami very well. उन्हें आके economical रहने की कोशिश करता. इन किस्मत उन्हें 2 निकाल ले सकता विकेट, 1 निकाल लेता, यूजुअली 2 निकाल लेता. वहाँ हैवत शुरू हो जाती. Now they go out to play Siraj or they go out to play Shami and they get the wicket. So I mean Jasprit Bumrah lays the platform and then other bowler just eat off it. I mean they have their own जो बोलते हैं उन लोगों की खुद की टैलेंट है, ये नहीं बोल रहा हूँ, बट जसप्रीत बुमराह इज द मेन पर्सन हु इज गिविंग कॉन्फिडेंस टू दैट एंटायर बॉलिंग डिपार्टमेंट. एंड ऑब्वियसली लाइक वो पिच तो उन्हें एलिमिनेट करता, कौन सी भी पिच पे डालो उन्हें अपनी लाइन लेंथ तो मेंटेन करके रखता. अफगानिस्तान तभी जीत सकती है जब साउथ अफ्रीका चेस करी. हाँ बिल्कुल, मतलब साउथ अफ्रीका अंडर प्रेशर वी सीन वाइल चेसिंग ऑलमोस्ट लॉस्ट टू पाकिस्तान, दे लॉस्ट टू नेदरलैंड्स, तो हो सकता है भाई वो. हाँ एंड अफगानिस्तान ईडन गार्डन्स में लाइक ड्यू फैक्टर रहेगा तो आई थिंक यू वुड वांट टू विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट. दुनिया का किंग एक है कोहली एंड नो वन कैन रिप्लेस हिम एवर. फुल कैपिटल्स. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे विराट कोहली. भाई साउथ अफ्रीका गिवन डे पे किसी से हार सकती है चेस करते हुए, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं. हाँ बिल्कुल भाई, वो तो होता, मगर उन लोग किसी दिन पे भी 500 मार सकते हैं, इसलिए तो डर है वैसे टीम्स के. बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप कि चेस में उन लोग परेशान हो जा सकते हैं, अंडर प्रेशर आ सकते हैं. लेकिन अगर आप सेमीफाइनल में उन लोग टॉस करके बैटिंग कर लिए तो फिर आप भी परेशान हो जा सकते. आप मतलब कोई भी इंडिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जैसा कैप्टन है, ही इज वेरी स्मार्ट. आई थिंक उन्हें असेस कर लिया. बट अ लेजेंड मैन, ही इज गोइंग वायरल ऑन इंस्टाग्राम. हां क्या है उसके बाबूराव के और उसके कंपैरिजन डाल दे रहा है, पर आगे टीम के हडल में गायब हो जाता है ना, डिसअपीयर हो गया था. भाई उसका और जैनसन का बहुत ज्यादा हाइट डिफरेंस कभी देखा नहीं. ब्रो ने चितड़ों पे भी नहीं आ रहा. जैनसन इज लाइक अ जिराफ एंड दिस गाय लाइक अ पेंगुइन ब्रो. ऐसा मसला है उन लोगों का. बट वेरी नाइस गाय, वेरी स्मार्ट क्रिकेट ब्रेन है उसका. उर्वशी उसको ट्रॉफी देने वाली है. तो उन्हें भाई आई थिंक बबूमा ऑब्वियसली उन्हें नेदरलैंड्स का भी गेम असेस कराऊंगा, उन्हें पाकिस्तान का भी गेम असेस कराऊंगा. एंड कहीं ना कहीं उन लोग प्लान बना रहे होंगे हाउ टू थिंक. वुड यू प्ले शमसी टुमारो मुस्तफा? कोलकाता में आई मीन आई वुड बी टेम्प्टेड इफ इट्स टर्निंग ट्रैक एंड वहाँ से अश्विन अगर रहा तो डेफिनेटली आई विल बी टेम्प्टेड. आई थिंक शमसी को खिलाना. अगेन शमसी इज नॉट ऑन दैट लेवल आई थिंक एज समवन एज अ कुलदीप और अ नूर, बट आई थिंक ही इज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन. उन्हें क्रिएट करता चांसेस एंड यस इफ इट इज कंड्यूसिव टू स्पिन देन आई वुड बी टेम्प्टेड टू प्ले शमसी. Butter is still with us, man. I'm That's so why this team is alive, bro. yeah, man. That time we were going 90 minutes. We went because he came in the 80th minute. Because he was watching the game. Yeah, there's only one king is king. Lord Temba the king. बोल रहे. 2 Bavuma equals 1 Marco. I think 15-20 Bavumas is one. वो खाए 6 सब्वे का सैंडविच आना तो एक बबूमा आता है वो यार उन्हें. Too I mean, I'm also not that tall, obviously, but I just think Bavuma is different gravy. कल यानसन के ओवर खामोश निकाल लेना, बाकी सब ठीक हो जाता. कल शमसी खेल रहा, लिख दो. शमसी है खेल रहा, लिख लिया मैं शमसी खेल रहा. एंड आल्सो यस मार्को यानसन का बॉल रोहित शर्मा के लिए एक खौफ, because height factor भी है यानसन के पास, so he get the ball to bounce as well and probably move in a bit. It'll be fun to see Rohit Sharma versus Jansen. And the last match जो श्रीलंका against मधु शंकर जो रोहित शर्मा को निकाला था, that ball was also phenomenal. He didn't swing it in actually, थोड़ा बहुत out गया था वो वाला. ये मॉडर्न डे क्रिकेट में because हमारे को याद है ईडन गार्डन्स में आई थिंक या नाउ व्हाट इज रोहित शर्मा's ground, right? Yeah, the one 200. Yeah, this is his ground. तो yeah, let's see what he does. Because I was thinking, मेरे को याद है पहले अजहरुद्दीन का फेवरेट था, गंगोली of course he was, but रोहित शर्मा man, he has a next level record over there. Eden Gardens is my favorite ground in India. I'll be very excited to watch the game tomorrow. Like बहुत जबरदस्त रहने वाला है मैच.
ये नवीन लोग की एक्शन बुमराह जैसी है बोल रहे हैं. More like Hassan Ali, I think, not Bumrah. I mean, Bumrah का तो एक्शन अनोखा है. हसन अली का भी ऐसा स्ट्रेट है और उसका भी नवीन उल हक का भी हाथ बहुत स्ट्रेट आता. So I think I would say more like it's like a नवीन उल हक thing and Hassan Ali thing rather than a Bumrah तो भाई अलग है. उसकी तो पीठ की इंजरी उसके एक्शन की वजह से होती. रबाडा हमेशा हमें परेशान करता है. बिल्कुल वो टॉप क्वालिटी बॉलर है. मैं फैज को भी बोलता हूँ कि उन्हें पिटता उन्हें ठीक है, आईपीएल में भी पिटता है एवरीथिंग, बट व्हेन ही इज इन फुल फ्लो दिस गाय इज एन अमेजिंग बॉलर मैन. आई रियली लाइक हिज बॉलिंग. आई एंजॉय रबाडा एज अ बॉलर. पंटर ऑलवेज पिक्स हिम इन फैंटेसी, स्पेशली व्हेन वी प्लेइंग आईपीएल फैंटेसी, एंड ही इज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन, अटैकिंग एग्रेसिव बॉलर. ठीक है, यू नो ही कैन बी एक्सपेंसिव एंड दैट्स वेयर इंडिया विल लुक टू पुट प्रेशर. अगर आप रबाडा को पकड़ लिए एंड यू पुट प्रेशर ऑन रबाडा एंड यानसन, दैट्स व्हाट रोहित शर्मा इज गोइंग टू लुक to do. He is going to take risk tomorrow. He's getting out either in the power play or he's smashing. So at least like he will smash it 50 just to take the pressure off. I think he's going to go one way, Rohit Sharma tomorrow, attacking cricket. Depending on what the guy on the other end, Shubman Gill. He doesn't care anymore, Rohit Sharma, what the other guy is doing. उन्हें बोल रहा मैं ऐसे ही खेलूंगा, आप आराम से खेलो, कोई बात नहीं. हाँ वो भी बोले थे कि like in case like it depends, I have to make a decision either like 0-4-0 I feel less pressure, yes I'll try going attacking, but if my team gets out like 2-3 wicket guy, then like what we saw in Lucknow, he changed his template a bit. थोड़ा बहुत slow down हो गए थे, उन्होंने थोड़ा base set करे, then KL Rahul के साथ थोड़ी partnership बनी. So again it depends on that, but yeah, like Mustafa was saying, looks like he's going to go smashing Jansen for a couple of fours in the first few overs, I feel. Yeah, India should keep trying to set score, nothing to lose now. We know they are better chasers. We know India, you're saying, are better chasers, but my thing is that we saw this in 2019 World Cup. Now, again, if Mumbai, you lose the toss, you're fielding and you concede over 300, for example, right? And the ball starts swinging in the second half, then that would be a big problem. 100%. That'll be so I don't think, like for me, I'm not looking at the semi-finals because that's going to be a completely different game. You can't plan for that. You have to just play your cricket. What's in front of you, you have to win the game tomorrow. Correct. Right? If you lose, ठीक है, you learn from that and you go into the next game because you're still qualified. लेकिन your main aim is not to plan सेमीफाइनल के लिए तैयारी करेंगे तो हम पहले बैटिंग कर लेंगे या बॉलिंग कर लेंगे. आप कंडीशन देखो, आपके हिसाब से आप गेम कैसा जीतने वाले हैं कल. अगर आप चेसिंग, अगर ड्यू है तो आप चेसिंग कर लो. अगर आप समझ रहे हैं कि द पिच विल ब्रेक एंड द स्पिनर्स विल कम इनटू प्ले तो आप बैटिंग पहले ले लो. अगर आप वो यू नो सेमीज के ऊपर सोच रहे वो यू थिंकिंग टू फार अहेड एंड यू लूज दैट गेम ऑटोमेटिकली, और it won't make a difference what if you plan. This is a different condition, different thing. I mean, it could be again you might play the semis in Kolkata, but we don't know anything right now, so you can't plan that far ahead. And the way Rohit Sharma bole, we're going to take it a game each and we're going to try and make up a plan, and hopefully the boys respond to that plan. We might be right, I might be wrong in certain decisions, but we will take it depending upon what the opposition is in front of us, what the pitch and conditions suggest, and you may agree, you may not agree, but at the end of the day, that's the call that I have to take as a captain, and I'll back myself and so will my boys. So I think, like Mustafa was saying, if they like Rohit Sharma, if we plan too far ahead, it's not good for our own mental health. One game at a time, and yeah, that's about it. वरना आप उसके बारे में सोचने में जो सामने है वही खो देंगे आप. अय्यर फेल हो रहा है कल फिर से. इंडिया बैटिंग फर्स्ट अगेन, ऐसे टू चेस बोल रहे हैं अब्दुल रहमान भाई. डिकॉक का रिकॉर्ड खराब है इंडिया के खिलाफ, एंड ऑल्सो पर्टिकुलरली आई थिंक दैट्स व्हाई दे माइट वांट टू प्ले अश्विन फॉर क्विंटन डिकॉक, बिकॉज उसका ऑफ स्पिन से इशू अगर आप देखें उसके पास डिसमिसल्स. मुझसे भाई आप क्या सोचते हो, हमें एक मैच हारना चाहिए, अनबीटन जाते हैं तो सेमीफाइनल में हार जाते हैं. भाई आप लास्ट बिल्कुल नहीं हारना है, मैं आपको बताता हूँ क्यों. लास्ट T20 वर्ल्ड कप में आप मैच हारे थे राइट साउथ अफ्रीका से, आप जाके सेमीफाइनल में हारे. 2019 में भी आप कौन सा अनबीटन थे, आप इंग्लैंड से हारे थे, आप जाके हारे, फिर यू लॉस्ट. 2016 में you lost to New Zealand and then you still lost in the semi-final. 2015 में you went unbeaten, I think. We didn't lose anything. Yeah, so I think it was only once you went unbeaten and you lost in the semi-final. तो बिल्कुल नहीं भाई. 2011 में भी आप हारे. मगर वो हारे इसलिए उन लोग बोल रहे हैं, वरना वो जीते वर्ल्ड कप राइट. मगर भाई इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, लाइक यू नो हारना जीतना, बिकॉज आप हार भी चुके हैं लाइक ग्रुप स्टेजेस में, यू स्टिल लॉस्ट द सेमीफाइनल्स. अब 2023 में इंग्लैंड कैसा मारे आपको सेमीफाइनल में, हमारे को कैसा मारे राइट, लाइक दे स्मैश्ड अस एंड यू स्टिल लॉस्ट अ गेम बिफोर दैट. इट डिडंट मैटर. आई थिंक you have winning momentum. You take the example of Australian teams in the past, 2003 2007, they went unbeaten, they just went smashing. And this kind of Indian team you gotta have giving us the thought of that past Australian team, because ये Indian team जो अभी currently है, they're smashing everybody. Yeah, you gotta have that Mamba mentality, bro. Like you gotta keep going, and then if you lose in the semi-final, you can't say कि भाई हम लोग हारना था. नहीं भाई, अब हार गए तो हार गए. No fail or failure. You have to go play attacking cricket. Semi-final में भी भाई आप risk लो, gamble लो, हारे तो भाई आप support
करो, आपकी टीम है, because they've given you happiness as well. But I don't think you I mean यही तो ना सुपरस्टिशन लगा लेके सिर में सोच ले मिथ के भाई, अरे भाई सेमीफाइनल जीत गया, अगर अभी हार गया तो सेमीफाइनल, व्हाट आर द ऑड्स? अभी आपको गिना दिए ऑड्स, 2021, 2022 T20, 2016 T20, 2015. Even Champions Trophy, we lost to Sri Lanka in the group stages, and then we lost to Pakistan in the final. We weren't unbeaten there. I think Punter Singh 2015 we were unbeaten, lost semis. Yeah, but like that's one off, man. Like it's not मेरा वही suggestion है कि भाई ये सब superstition लाइट लो. अभी जिस तरीके से boys खेल रहे हर डिपार्टमेंट में number 1. I don't think there's any team right now. आपको अगर फिलहाल मैं आपको करता हूँ, आपको क्या करना है, जो आप गलतियां करे लास्ट सेमीफाइनल्स में, जो आप डर के खेले, आप वो करे, वो आपको बदलना है. वो आपको जो सेमीफाइनल में वो माइंडसेट आपको बदलना है. रोहित शर्मा आके डिफेंसिव खेलना शुरू करे तो एवरीवन गोना गेट. हाँ, वो उन्हें जो रुक रहे, आपको एग्रेसिव खेलना है और रिस्क लेना है, और आपको लाइक अटैकिंग माइंडसेट से खेले तो भाई आप वो भी जीत सकते. एंड हार गए तो फिर लाइक हार गया. The real pressure test is in the semi-final. That is where you'll understand आपकी प्लेयर्स की मेंटालिटी कितनी स्ट्रांग है. And I'll say that it's not कि आप इधर हार गए तो आप उधर हार जीत जाएंगे, उधर जीते तो उधर हार जाएंगे. It's not gonna be like that. On the day when the pressure is actually on, because ये दो last match let's face it, Netherlands, South Africa, yes you want to finish top, but it's not like कि भाई नहीं जीते तो आप qualify नहीं करोगे. और एक और चीज़ है, ऐसा नहीं है कि you've thrashed a lot of teams, but there is moments in this World Cup always be someone जहाँ आपको फंस गए थे आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 for 3, like it was a huge problem at that time, so you came out in a tough situation. This will help you more than losing. Yeah, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सूर्य कुमार जब रन आउट हुआ, इंग्लैंड, हाँ, जो like they were 180 for 6, and then Bumrah put up some runs, Kuldeep bhai also put up some runs. Those things will help you more than you losing, being in tough situations and particular matches, so and coming out of that. Mentality build होती to get yourself out of those crunch situations जो अभी आप देख रहे हैं. And semi-final में अगर ऐसा situation आया, having already been experimented in the or gone through that in the group stages, आप निकाल ले सकते हो. Ball will swing under lights in Eden. Is Abdurrahman bhai saying. Punter Singh in press conference, reporter Ash Reyes, short balls have been a problem. Who said short ball is my problem? Who said short ball is my problem? You guys made this my hole. For you, he throws attitude and says, "What problem I have hit so many runs." Your thoughts? Do you know the probability? The probability is always going to be that you can get out on any ball. That was the response he gave. See man, anyone is going to get angry अगर आप एक चीज़ पे आप उसको अड़ा के रखे. अगर मैं मुस्तफा को बोला आप आप ये नहीं खेल सकते, मुस्तफा भी बोलेगा नहीं, कौन बोले मैं इतना अच्छा भी उसमें, तो कोई भी कुछ भी डिफेंसिव होगा ही अपने को लेके. बट अगर I think it was अगर just रिपोर्टर होता तो रिपोर्टर खुला पलट के ये बोलना था कि भाई आपके इतने बॉल पे आप इतने शॉर्ट बॉलों पे आउट. बट उन्हें सही था रिपोर्टर. बट यही है कि अगर उनको नहीं लगता था चोट या बुरा नहीं लगता था तो उतना रिस्पॉन्ड नहीं, उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं करता था. यू वुड जस्ट से लाइट या इट्स ओके. रोहित भाई होते तो हम क्या कर दूं, तो रोहित शर्मा. अरे उसको यू वर इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस राइट, वर यू देयर व्हेन ही सेड कि उसको बोले स्टैचू कैसा लगा. तो रोहित शर्मा वो लेजेंडरी है. आई लव दिस गाय. लाइक आई मीन आई हैव नॉट सीन अ कैप्टन एज चिल्ड आउट एज रोहित शर्मा. उसको पूछते कि भाई स्टैचू का क्या, स्टैचू बना सचिन का, तो उन्हें ब्लैंक आउट हो जाता. स्टैचू क्या स्टैचू. तो फिर उसका जो मीडिया मैनेजर रहता आनंद बोल के उन्हें बोलता वो सचिन का स्टैचू. अच्छा हाँ, जबरदस्त. वो लॉफ्टेड शॉट कौन था लॉफ्टेड शॉट. अरे यार तुम लोग लॉफ्टेड शॉट पूछोगे, मुझे यार देख लिया यार स्टैचू बोल के एकदम उन्हें पूरे. बट ही इज वेरी फनी, ही इज अ वेरी नाइस गाय इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस. पूरे मीडिया पीपल वेट फॉर रोहित शर्मा. या इज ए लॉफ्टेड शॉट का स्टैचू है. अब इसका क्या जवाब है यार, इसका क्या जवाब दूं मैं. लॉफ्टेड शॉट और ये शॉट अच्छा है, देख लिया बस, और क्या ही करूं मैं. आई वाज वेरी कंफ्यूजिंग. जस्ट सेड हाउ व्हाट इज द स्टैचू बोले. वो लॉफ्ट ने जो सवाल जिस तरीके से पूछा, लॉफ्टेड शॉट वाला स्टैचू देखे क्या. मैं क्या करूं इसका जवाब. सचिन का स्टैचू देखे क्या बोल रहे हैं. सेम 11 खेल रहे कल, नो अश्विन, ये भी लिख के ले लो. हाँ लिख लिया. ये श्रीलंका नहीं है, सिराज इस लंका है तंग. कांति है श्रीलंका बैटर्स की. सिराज देख के भाई, सिराज की लंका. यहाँ पे तो फायरवर्क्स बज रहे थे. हिज हाउस इज लाइक 10 मिनट्स. बिरयानी पड़ी भाई हमारी बस्ती में. यहाँ पे 10 मिनट दूर है उसका घर. इधर से ये सर डाउन है, सर डाउन पे गए तो वहाँ पे लेफ्ट पे घर आता उसका. एंड दे आर ऑल सेलिब्रेटिंग. एंड आई मीन इट्स नॉट अ न्यू हाउस, इट्स लाइक हिज फैमिली हाउस. ही इज मूव्ड नाउ. आई थिंक नाउ ही गॉन टू अनदर एरिया, बट ही डजंट फॉरगेट वेरी गेम. हिज फैमिली स्टिल लिव्स हियर. नहीं यही है. उसकी गाड़ी भी देखे थे आप लोगों को फोटो भेजते. हम लोग एवरी फ्राइडे उसकी गाड़ी भी देखते हैं, लाइक वहाँ पे जुम्मे के बाद. भाई मिसिंग हैदराबादी बिरयानी.
Yeah, food in Hyderabad. Honestly, I've been to a lot of cities this year. It's the first time I've traveled this much in my life. I've never traveled. मैं तो खाली जिद्दा, Dubai, Canada. These are the only places. But this place, like in India, even Delhi, bro, the food was insane everywhere, man. But like Hyderabad has a different khatta salan and all this you get here only khatta pana. Yeah, I mean हमारे को वो आदत है बोल के ये I think these were the things for you tomorrow. Faiz, your prediction for the game, players to watch out for from both sides. Players to watch out for I say KL Rahul tomorrow. I think KL Rahul was very angry with himself the way he got out in the last game, particularly because he felt he could have got a lot more runs. So KL Rahul बोलूँगा मैं for India, and bowling wise I'll go with I think Jasprit Bumrah this time will come smashing. And South Africa के हिसाब से on this wicket Eden Gardens I don't want to steal your boy away, but Hendrik Larsson I think he's gonna be incredible tomorrow. I think I can sense 100 from him. Bowling wise I'll go with Gerald Coetzee if he gets to play in place of Shamsi, or else I think it's just going to be Coetzee if he gets to play. With South Africa, I'll probably go with Bavuma, man. It's been a while, bro. It's been a Bavuma masterclass. I really wanted to say Markram because he's my favorite player, man. Him and Klaassen. I don't know who is my favorite, but they're class, man. मतलब उन लोगों को देखो आप परेशान हो जाते हैं. Like if you enjoy cricket, just enjoy their batting. But I'll go Bavuma. I think it's time, bro. The guy comes out and इतने छोटे आँख लेके आते look like a Pokemon. Yeah, honestly I love his contributions 27, 26, 20. बहुत consistent है. I really enjoy it. It's like a Pokemon. Yeah, he sets the platform for Quinton de Kock, you know, like उसका pressure निकाल के 2-3 छक्के आगे मार के फिर आउट आया था. वो technically gifted है यार Bavuma. काफी shots अच्छे हैं, like off the square cut ये वो अच्छा मारता है. नहीं अच्छा तो मारता है मगर वही है. He's just not consistent. As a captain, everything you expect him to score more runs. I know where punter is coming from, but just a little too short. Marco, Markram, Klaassen, QTK, मुझसे your favorite players. Who are you supporting tomorrow? भाई आप मेरे को 1 घंटा का लेक्चर दिए थे 2020 में that I have to be neutral. तो आप ले लो फिर जवाब यही है, I have to be neutral बोल के. But I'm going to enjoy the game. This is the game I'm looking forward to since the start. When I saw the schedule, I told Faiz this is the game, Eden Gardens. And at that time we didn't know how South Africa was playing. वो feeling रहती है भाई, like South Africa है, India, it's going to be a good game. Eden Gardens adds to it, the mahol. Don't you think like football World Cup, cricket World Cup should also play in groups of 4 divided with lottery system rather than have pre-qualification teams like Zimbabwe, Scotland and West Indies? But I mean, भाई ऐसा हुआ था और फिर इंडिया ग्रुप स्टेजेस में नॉकआउट हो गए थे. वेस्ट इंडीज बरम्यूडा से खेल रहे थे उन लोग, बरम्यूडा से जीते और फिर से नहीं होता. ये जो 20 मार्क का क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब भी आपको 2007 में जाओ पत्थरा मार दिया था, धोनी के घर पे चप्पला मारे थे, युवराज सिंह का पुतला जला दिया. नहीं करेंगे वैसा भाई, वैसा मेरे को तो वो पसंद. मेरे को कौन सा मालूम पसंद, वो 2011 और 1996 वाला क्वार्टर फाइनल मेरे को पसंद. मगर दैट इज अ वेरी हाई रिस्क. निकल जाते भाई क्वार्टर फाइनल में, मगर मजा आता है मेरे को. क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल. आई वांट लाइक द मोर नॉकआउट्स द बेटर. Champions Trophy, I feel should be a knockout tournament. It shouldn't, is it? No, it's not. It's not. It used to be, I think 2000 में or something. ऐसा रहना कि मिनी वर्ल्ड कप जब था वो. ऐसा मतलब जैसा यूरोस भी नॉकआउट नहीं, ग्रुप स्टेजेस रहते हैं यूरोस में. बट या आई थिंक वो नॉकआउट रहना धाड़ बोल के चैंपियंस ट्रॉफी वैसा, लाइक एवरीवन प्लेज वन मैच फिर फाइनल, ऐसा लाइक जबरदस्त रहता. वेयर आर यू फ्रॉम? ध्रुव सिंह. राइट हियर, हैदराबाद. Yeah, from Hyderabad, India originally. Faiz, I have different roots everywhere, but we all have different roots. I was born in Saudi Arabia, then I moved to I lived there 18 years. If there are any ladies outside, biodata. Then I moved to Canada. And then now we live in Dubai, right? That's where do we live? Some place called Dubai. Now we live in a suitcase, bro. That's where we live. In the last 6 months, कभी कोलंबो में, कभी टोरंटो में, कभी लंदन में, कभी इधर. भाई भिजाते रहते हैं मेरे को इधर मजबूरत में. क्या मुश्किल जिंदगी. But yeah, वो जो जवाब था, I think about the format, I think because of what happened with India, they're never gonna go to that stage. Yeah, punter is asking 20 mark questions now. भाई accreditation करते हैं आप लोग through which platform? अपना ही platform है सर. नहीं, ICC के through जो accreditation का platform है ICC और depending upon जो भी आपका media house है, अगर जैसे भाई जब एशिया कप को कहते हैं तो श्रीलंका के बोर्ड से करे थे. अब जो है किस्मत है सर at the end of the day, और अल्लाह का शुक्र है, बस उतना ही बोल सकते हैं. भाई इंडिया का मैच है tomorrow, भाई नहीं है कल, आज है मैच इंडिया का, आज है बर्थडे विराट भाई का. 5 बजे हम लोग जा रहे नहीं, फ्लाइट बहुत महंगा है, 15,000 रुपए की फ्लाइट है. बट ध्रुव भाई आज है, और आप कहाँ से? आई थिंक ही
in another country में? इंडिया का मैच आज है Are you भाई, in कल another भी। country में? मिस्टर ध्रुव, Yes, Dhruv, show me एक the Dhruv. कमेंट आया, मैं वेट कर रहा हूँ आ उसके जाएगा, आ लिए। जाएगा। तो या आप कौन से कंट्री से, ध्रुव भाई, या सिटी से, आप बताओ, और अगर हम लोग वहाँ आ रहे तो होपफुली वी गेट टू मीट यू। बट या आपके भी प्रेडिक्शन बताओ कि आपको इंडिया साउथ अफ्रीका जो कल है आपके अनुसार और हमारे अनुसार आज है, व्हाट इज द सीन, लाइक व्हाट डू यू थिंक गोना हैपन? एंड yeah, like Mustafa I said, this game is the match, probably a match of the tournament. I hope it turns out to be that. We see like a match phas gaya kind of situation, or like a lot of runs from both the sides, entertaining kind of a situation. I am from Delhi. दिल्ली से हूँ मैं। भाई, हम लोग दिल्ली में थे, बहुत जबरदस्त शहर है भाई आपका। मैं पहली बार आया, मेरे को बहुत मजा आया देख के। हाँ, दूसरी बार आया मैं, बहुत बेहतरीन था, मगर पहली बार तो कुछ करे नहीं थे। नोएडा में रहे, यहाँ पे प्रॉपर दिल्ली में थे हम लोग, प्रॉपर ये चाणक्यपुरा में थे हम लोग। क्या जबरदस्त ऑफ कैंपस। आप लोग गालियाँ बहुत जबरदस्त देते हैं वहाँ पे, इतने गाली तो मैं कभी सुना नहीं। लाइक रोड पे इधर उधर मैं एक रिपोर्ट कर से निकलते आते कि बैंड, हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे तो गालियाँ आ रही, सेंसर करना पड़ा था, मगर खाना लाजवाब। चांदनी चौक में वो है असलम्स और करीम्स, और फिर चाय जो थी वहाँ पे अच्छी थी। आई मीन हैदराबाद मेरा फेवरेट चाहिए, मगर कबाब्स एंड ऑल दैट जबरदस्त थे। एंड हम लोग वहीं फिरोजा कोटला भी गए थे, बेहतरीन स्टेडियम है। अरुण जेटली, सॉरी, सौरव गंगुली ने बोला 5500 विराट के बना के क्या वही के मास्क बांटूंगा क्राउड को। I mean, ये तो बोले थे 70,000 था इनिशियली, बट दैट वाज नॉट अलाउड। उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग्स दे दिए। देन आई डोंट नो अभी ये सिचुएशन क्या है। एंड गंगुली करे तो पावर है तो वो कर सकते, प्रिंस ऑफ कैलकटा है उन्होंने, तो ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स। एंड अगर करे तो मजा आ जाएगा। एंड विल जस्ट ऐड टू द प्रेशर टू साउथ अफ्रीका, विराट कितने मार्क्स देख के। बट एक चीज है, हम लोग जो भी मैचेस हो गए, विराट कोहली के सबसे ज्यादा जर्सीज है। 100%। इवन लाइक दिल्ली तो खैर होगा, बॉम्बे में भी, मुंबई में भी जितने भी बार में रोहित ऐसे ही था। गुड़गांव साइबर हब विजिट करो भाई, न्यूयॉर्क डाउनटाउन वाली फील है नाइट को भाई, देखना पड़ेगा। ये फील तो मुझे भी चखना है। मेरे को खास भी नहीं लिखे गए मेरे को। ग्रेट स्टफ बॉयज, कीप अप द ग्रेट वर्क पंटर। यू आर मेकिंग अस डू द ग्रेट वर्क ब्रो बाय दिस एक्शन, दिस ग्रेट क्वेश्चन। या नो, इट डज हेल्प अ लॉट, इसलिए हम लोग बोलते हैं आपको। या पंटर हमारे दोस्त क्या भाई कैसे थे, एंड द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड अ लॉट ऑफ दिस। हाँ, मतलब हमारे को पहले से सपोर्ट करते, हम लोग को जब लाइक उतना लाइक कुछ वो नहीं था, एनीथिंग, वी जस्ट व्हेन वी स्टार्टेड ही, जब हमारे पास रोशनी नहीं थी, हमारे अंधेरे की रोशनी, 2 बजे सुबह तक बैठ के उन्होंने ग्राफिक्स बनाते थे हमारे लिए, यू नो क्या बनाए थे कुकर में, या एनिमेशंस बनाते थे। गेल के एंड काफी मेरे को सजेशन देते थे, तो लाइक उनका बहुत तारीफ करना। देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल who have supported us. Punter is one of them, and he's still supporting, so we really appreciate it. Probably a 2-minute silence for the other guy. But yeah, I mean, at the end of it, like Mustafa, आपके सेमीफाइनलिस्ट कौन है? ओ भाई ये तो तू तेज भाई भैया, वन टाइम पुणे में हो जा रहे, क्या बोल रहे, एमसी स्टैन जूनियर इन द हाउस, क्या बोल रहे हो भाई? पब्लिक को सो गए होंगे, वरना मैं ऐड कर देता वन टाइम। अगर हम लोग आ रहे हैं बॉम्बे या कलकत्ता, देखना पड़ेगा कहाँ है सेमीफाइनल। उषा, आप हमारे को लेके जाना इधर उधर। ध्रुव भाई क्या बोले? ध्रुव भाई भाई कप विनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, साउथ भाई, इंडिया तो हटा दिया आप इसमें से। कप विनर में से साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं। ध्रुव भाई न्यूयॉर्क के फीस में है। भाई भूल गए इंडिया को। कप विनर भाई अभी बोलना मुश्किल है, लेकिन जो क्रिकेट खेल रही है इंडिया ही दिख रही है, बट लाइक बहुत दूर है अभी, लाइक यू नो ट्रॉफी। मैं तो नहीं बोल सकता, आई एम नो ऑक्टोपस ब्रो, आई डोंट नो हु इज गोइंग टू विन द वर्ल्ड कप। एन ऑक्टोपस, नॉट इवन अ सी हॉर्स। करीम्स बेस्ट है, और लखनऊ में इदरीस की इदरीस की बिरयानी फेमस है भाई। लखनऊ भी जाना पड़ेगा, नहीं गए हम लोग लखनऊ, जाते नहीं गए लखनऊ नहीं गए। ये सेमीफाइनल ऐसा मैं कलकत्ता जाना चाह रहा हूँ, फैज लखनऊ जाना चाह रहा था, तो बदला ले लिया मेरा, लखनऊ ने दिया तो मेरे को कलकत्ता में भी बिरयानी है शायद, नहीं? हाँ, बट उसमें अलग है यार। क्या अलग है यार? अपने पास अलग है। वहाँ पे खाना क्या फेमस है अपार्ट फ्रॉम रसगुल्ला एंड ऑल दैट? फिश। मच्छी खाएगा? अच्छा, लाइक बांग्लादेश। या लाइक बांग्लादेश। फिश इज कलकत्ता में कोयला भी फेमस है, मैं वो देखा मूवी, कौन सा है? कोयला, कौन सा मूवी है? अच्छा, गुंडे। कोयला का बिजनेस रहता नहीं? Yeah, that means we'll be sorted over there. Fish in Calcutta. Yeah, I mean, so either we're gonna have fish or we're gonna have vada pav. We're still deciding what to do. I think for me, I'm more excited of the night before the match because माहौल जो बनेगा after we do the interviews, we meet the fans. Tejas was with me in Mumbai and we had a lot of fun. उन्होंने भी मैच देखे लाइव, he said बहुत जबरदस्त स्टेडियम था वानखेड़े का, माहौल
टू गुड था. लोग बहुत अप्रिशिएटिव थे एंड फन जॉली पीपल इन मुंबई एंड आई आल्सो विटनेस द सेम. अब थोड़ा बहुत बैंटर हो गया था IPL का भी, बट या मुंबई की पब्लिक बहुत एक नंबर है. एक नंबर है मुंबई की पब्लिक. और आई थिंक अभी ओवरऑल जो है नाउ द वर्ल्ड कप इज गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग. अभी हम लोग ऐसा स्टेज पे है कि भाई सेमीफाइनल्स इज कमिंग क्लोज एंड दिस स्टिल लॉट ऑफ टीम्स स्टिल इन कंटेंशन. तो हर दिन कुछ ना कल यू कैन से यू नो इंडिया इज क्वालिफाइड, साउथ अफ्रीका विल प्रॉब्ली बी क्वालिफाइंग टू. लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ साउथ अफ्रीका विन टुमारो देन दे विल बी टॉप. Yes, they And will be if top. they're top, and then if they beat Afghanistan, then they will continue to be top. Continue to be So India will be top. second. And They'll have to India be the will third team. Netherlands by like some margin. Yeah, then तो I think कल का गेम बहुत क्रैकर है. It will be very important for top of the table. And crowd तो ज़बरदस्त तो रहेगा भाई. भाई तुम्हारी favorite dish क्या है? Oh, that's a very big question. मेरा एक है रूस बुखारी बोल के डिश है. लाइक यू गेट इट इन सऊदी में खाता हूँ मैं. अफगानी खाना है. अफगानी खाना है राइट. लाइक मगर वो मैं सऊदी में बचपन से खा रहा हूँ. वो फ्राइडेज को खाते थे हम लोग. इट्स लाइक कैरेट राइस रेजिन्स एंड ग्रिल्ड चिकन. या तो ग्रिल्ड फ्लैट चिकन ले सकते हैं या रोटिसरी चिकन. मैं रोटिसरी लेता हूँ. उसमें मिर्ची का पाउडर रहता है. दाल रखो पूछो बहुत ज़बरदस्त है. द स्पेसिफिक वन अभी यहाँ तक खाया. हाँ मगर वो मेरा फेवरेट डिश है. अगर इंडियन अगर मेरे को पूछे आप इंडियन डिश मेरा फेवरेट होगा. आजकल वो चल रहा है लूज प्रॉन्स. बट आई डोंट नो दैट्स इंडियन डिश. ज़बरदस्त है. बट बटर चिकन बहुत पसंद मेरे को. And and then outside of that I love Hakka Chinese also. मुंबई की पब्लिक बोलो तो तकलीफ. क्या बोलो तो तकलीफ भाई. अच्छा आई थिंक कोई डायलॉग है शायद. आई एम नॉट श्योर बट या मुंबई की पब्लिक तकलीफ. MC स्टैन से मिले वहाँ पे. MC स्टैन था ना. तेजस मिस्टर जूनियर तेजस था ना मुंबई में. भाई तुम्हारी फेवरेट सिटी क्या है? अरे भाई आप बोलो. आप तो फॉरेनर. कहाँ यहाँ पे इंडिया में या आप मेरे को ये स्पेसिफाई करते इंडिया में बोलो या दुनिया में बोलो? इंडिया में बोलो. इंडिया में मेरी फेवरेट सिटी मुंबई है. और बाहर मेरे को हैदराबाद भी पसंद है. ऐसा नहीं है कि नहीं पसंद. बट मुंबई इज जस्ट लाइक गिव्स यू द बॉलीवुड वाइब्स. यू नो आई लाइक द यहाँ टॉलीवुड वाइब. ये भी इज नॉट बैड बट लाइक इट्स डिफरेंट ग्रेवी. भाई सऊदी में नियॉन सिटी गए नहीं मगर वो नहीं सुने भाई जाएंगे. मैं एक्चुअली हम लोग जिद्दा में रहते. मेरी फैमिली उधर ही रहती. तो जब जाऊंगा मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के बाद स्टफ जिद्दा ही जाऊंगा. फिर रियाद जाने की. रियाद तो विनो जाना चाह रहे. वो मेरे से ज़्यादा विनो जाना चाह रहे. इंडिया में फेवरेट सिटी आपका क्या है? आप मुंबई. मेरी तो हैदराबाद है भाई. हाँ मेरा बॉम्बे मेरे को बहुत पसंद. मगर आई एंजॉयड ऑल द सिटीज आई हैव बीन टू. मतलब मुंबई भी बहुत ज़बरदस्त था. दिल्ली ज़बरदस्त थी. आपकी भी जो यू नो आई थिंक मी also both enjoyed Delhi a lot. The people were also fun. Because I'll tell you another thing with Bombay, it reminds me of back of my home, like because there is a water and the sea and everything, right? The weather is also like that, so it's like and also Bollywood and all of that stuff. That makes a huge factor also. For me, it's like हैदराबाद तो भाई 2-3 दिन के बाद क्या है खट्टा सालन याद आ जाता ब्रो. नहीं मगर वहाँ पे भी लाइक यू नो बॉम्बे में हम लोग काफी. मैं बचपन से जा रहा हूँ तो वहाँ पे भी खाना बेहतरीन है. बैंगलोर मेरे को बहुत पसंद है. बैंगलोर दो विद इन देमसेल्व्स रहते लोग वहाँ. बैंगलोर I've been a lot also. My grandmother is from Bangalore from my dad's side. My dad is from Bangalore, so I go there a lot. The only issue with Bangalore is there's too much traffic. मर जाता हूँ मैं ट्रैफिक. अभी लेकिन क्योंकि मैं मेट्रो यूज कर रहा था मस्ती तो लाइक मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ट्रैफिक से उतना. बट ये जो भी मेरे दोस्त भी थे वहाँ पे लाइक शाउट आउट टू देम. मजा आ गया था उनके साथ. शाहरुख खान बर्थडे celebration was lit. Yeah, I went with अच्छा तेजस. Like वेगन बना. Saudi will invest $5 billion in IPL, bro. मुस्तफा भाई डाल रहे. मैं कुछ भी जिद्दा में आएगा. हाँ क्रिकेट. Yeah, man. We have to Shine and Virat playing together. Then you'll get live content from every ground from chasing the target. अभी से like, subscribe, share करो भाई. Favorite player क्या है but India का नहीं? अभी बोल रहे आप. There's only one guy. ये भी बोल दो आप. अभी का बोल रहे हैं बाद में का बोल रहे हैं. There's only one guy if you're talking about that. I mean it's tough. It's tough. I have like a few favorite. I can give you top 3 favorite right now. मगर आप ये बोलो मेरे को all time या modern day अभी current cricket में मेरे top 3 है. Aiden Markram, Henry Klaasen, Rashid Khan. मेरे 3 favorite. Where's the main guy, bro? Which guy? Ben Stokes. Yeah, Ben Stokes. He's Punter, call this guy out now. Punter अभी बुला उसको. Yeah, Ben Stokes is my favorite all time also. He's crazy. You forgot your favorite of all time. He's saying current, right? Current में आया था Ben Stokes. अभी currently हार के गया ना. Ben Stokes भी बहुत पसंद मेरे को. Yeah, Ben Stokes overall for me I have not seen a player like that. Yeah, show him the book. He's like Michael Jordan है उन्हें like cricket का. भाई उन्हें जो खेला innings वो वाला Ashes वाला मैं कभी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखा.
like लीड्स number वाला बोल रहा था वन लीड्स वाला हाँ वो तो नहीं अभी रिसेंटली 150 मारा था मगर वो जीते नहीं सेकंड टेस्ट यार So मैंने बोला भाई जीते नहीं if it was someone else I'd say good effort but him like you expect him to win it and World Cup bro उन्हें World Cup T20 जिताया फाइनल फिर ये भी जिताया उन्हें बेन 19 स्टोक्स भी जिताया yeah all time I think you know Ben Stokes Andrew Flintoff that's the most मेरे को बहुत पसंद है Andrew Flintoff aggressive players बहुत पसंद है yeah फैज भाई का फेवरेट प्लेयर जैक कैलिस है ऑलराउंडर आपका है भाई को इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है भाई आज पाकिस्तान विन हो गई भाई गुड मॉर्निंग भाईजान का नाइट शिफ्ट दिख रहा है न्यूयॉर्क के टाइम से काम करते हैं भाई नाइट शिफ्ट हो गया बट पाकिस्तान का मैच हो गया 9 घंटे हो गया हम लोग पूरा एक लाइव कर दिए थे और हमारा क्रिटिसिज्म भी मिला हम 90 मिनट्स काम कर रहे थे नहीं भाई मालूम पाकिस्तान का विन हुआ जबरदस्त जीत हुई और बेहतरीन क्रिकेट खेला इंडस्ट्रियल जो लोग मेरे को हंसी का आती मालूम वो लोग सब एक्सपर्ट बोल रहे निकालो बाबर को ये करो वो करो आप क्या बोल रहे रमेश राजा जब सबसे बहुत क्या बोलते उसको यार गिरगिट बोलते ना रन को बदलता है भाई उन्हें पूरा टाइम गालियां देता है 400 का विकेट नहीं है ट्विटर के इन लोगों के पेजेस देख रहा हूं मैं हेलिश शो कैप्टेंसी व्हाट द हेल इज दिस गाय डूइंग दिस दैट मिनट जो बंदे जीत गए ओ पाकिस्तान वी बिलीव फिर वो आगे पोस्टर्स बैनर्स आई थिंक you can't ever say till जो वो पर्सन बोला फैट लेडी सिंह तो क्या की बोले थे ना it's not over to the fat lady सिंह और ये हम लोग हर वक्त यही प्रॉब्लम रहता है कि इतना क्रिटिसिज्म करते फिर हम लोग पहुंच जाते एंड द थिंग इज इफ दे रीच द सेमीफाइनल्स फाइन लाइक अगेन ही इज नॉट गोना गेट सैड एंड देन द सेम प्रॉब्लम विल हैपन अगेन then he lose 5-6 games and then they try to sack him then he'll reach the knockout so the problem तो this is Pakistan cricket since I've seen it bro like it's not अभी बाबर आजम के वजह से सरफराज का भी ऐसे ही था उन्हें ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी जिताया नो डाउट जबरदस्त कैप्टनसी करा 2015 में 2019 वर्ल्ड कप में भी अच्छा कमबैक कर रहे हैं उन लोग मगर भाई हर टीम में भी रहते आपको याद है वहाँ पे भी हारे थे ऑस्ट्रेलिया में फिर क्वार्टर फाइनल में वो विराट का स्पेल कैसा नचाया वॉटसन उन लोग को वहाँ पे कैचेस छोड़ दिए थे नहीं तो वो भी मैच जीत सकते थे सो उन लोग वैसे ही है भाई यू आर वेरी क्रेजी बोल रहे हैं भाई ये अंपायर कॉल 50-50 पे क्या ओपिनियन है आपका अब मेरा ओपिनियन भाई अंपायर कॉल शायद निकाल देना चाहिए इट्स कंफ्यूजिंग क्रिकेट भाई पहले से हमारे को लोग पूछते आई हैव साउदी फ्रेंड्स हु आर एक्चुअली वाचिंग क्रिकेट नाउ राइट मेरे को मैसेजेस आते वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंस इवन यू नो जो रोज एंड दिस गाइस डोंट नो एनीथिंग बिफोर अबाउट क्रिकेट राइट बट दे आर लर्निंग दे विलिंग टू लर्न बिकॉज इतना बड़ा आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ देसी फ्रेंड्स सो दे आर विलिंग टू लर्न एंड दे आर आल्सो इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल नॉट देम बट लाइक द कंट्री इज इन्वेस्टिंग सो दे आर टेकिंग मोर इंटरेस्ट इन द गेम मगर आप ऐसे रूल्स करेंगे कैसे समझाऊं मैं इम्पैक्ट प्लेयर समझा दो कोई भी सऊदी को मैं मान लूंगा भाई नहीं इम्पैक्ट रूल राइट नॉट प्लेयर इम्पैक्ट रूल हां इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल कौन सा सब्स्टिट्यूट वाला हां जो मिड हां नहीं बट इवन इम्पैक्ट अंपायर आ सकता लेकिन फॉरेनर नहीं रहते पूरे सऊदी में खेले तो पूरे फॉरेनर ही रहते वहां पे हम बोलो क्या कहते हैं भाई अंपायर्स कॉल आल्सो कैसे समझूं मैं वो तो भाई विकेट को लग रहा तो अंपायर कॉल है भाई अगर बॉल विकेट को लग रहा तो ये चीज मैं हाल में सुन रहा था मुस्तफा कि अगर अंपायर रूल है टेक्निकली जो आपको ग्राफिक बताते हैं ऑन द टीवी इट्स नॉट टेक्निकली हिटिंग द स्टंप in a parallel universe if there was a fourth wicket then it would probably hit that fourth wicket so that is why they only show you 3 stumps but when it's hitting that stump it's basically hitting the fourth stump and they showed us a visual of that also so ये explain कर रहे थे I think मंचरेकर या कौन की एक्सप्लेन कर रहे थे कमेंट्री में कि भाई जब एम्पायर्स कॉल का जो ग्राफिक बताते हैं या आपको यू नो हॉका या जो भी बताते हैं इट्स बेसिकली hitting a fourth stump not the third stump so there's some weird ass thing that you can't explain for a lot of people and that's why the sport will not go global yeah it becomes very difficult by the way Oman qualified for the 2024 yeah you told me this I did okay I'm telling you again and I'm telling these guys again yeah I know Oman or someone else told me this we discussed this on the live and I said ki Oman are one of my favorite emerging teams because even like not just now from 2018-19 they're playing very good cricket and I'm really happy but it's also because sorry it wasn't you it was in the comments someone said it it's also because there's more teams I think 18 टीम है I think ज़्यादा बढ़िया so that's good but then again ये टीम्स को खिलाना नेदरलैंड्स को भाई बायलैटरल्स खेलना चाहिए they have to आप जाओ नेदरलैंड्स खेलो नेदरलैंड्स यहाँ आना चाहिए नेदरलैंड्स ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए आप वैसे एम्स्टर्डम में राइट बट या यू शुड इम्प्रूव these teams they playing I know वो big 3 आ जाता पैसा आ जाता वो आ जाता but if you want cricket to improve and gain a wider audience then you need to have this
भाई अपनी बॉडी दिखाओ, मैं कैसा दिखाऊं, मेरे पास बॉडी नहीं। अच्छा इनको बोल रहे, मेरे को तो नहीं है, मैं परेशान हो गया, मेरे तो बॉडी ही नहीं है। ये वो वाली स्ट्रीम नहीं भाई बॉडी दिखाओ बोल रहे, ये पिलो टॉक भाई बॉडी बॉडी दिखाओ बोल रहे, ये भाई बॉडी भाई रोज बॉडी बनाते रोज जाके, कुछ भी रहने दो, ऊपर नीचे रह जाओ, जिंदगी जिम जरूरी है। भाई तुम कौन सी टीम को सपोर्ट, अरे एक मिनट, इफ हार्दिक वकार यूनिस खुद को ऑस्ट्रेलिया बता रहा है कमेंट्री पैनल में, ऑस्ट्रेलियन बता रहा है बिकॉज द एक्सेंट ऑस्ट्रेलियन। भाई तुम कौन सी टीम को सपोर्ट करते हो आईपीएल में? हैदराबाद सनराइजर्स। हैदराबाद सनराइजर्स। If Hardik Pandya doesn't recover before Australia's T20s, can we see Rahul or Rohit leading the team again? Rahul is now the vice captain currently after Hardik Pandya has been sidelined. What was the question? But will we see them lead the side in the T20s? I don't see any. I don't want honestly like. We will probably see Ruturaj or someone lead the side. Like Virat Kohli probably come back in and lead. Like No, not lead the side. in the Australia T20s. Oh, these T20, yeah, no, none of the seniors are going to play. Tejas bhai, अरे भाई, no one going to play in this. Like Virat Kohli is going to go on a like trip with Anushka, उन्हें उधर चले जाएंगे, सब चिल करेंगे। फिर 2024 जब T20 वर्ल्ड कप का टाइम होगा, अगर हार्दिक इंजरी होगी, जब सवाल पूछना है कौन कैप्टन जब बनेगा। Yeah, I don't think everyone going to maybe Gaikwad will lead, right? Gaikwad will lead, probably Shikhar Dhawan come back because उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो है, और NCA में ही सो रहा आजकल, तो I think उसको वहीं से ले लेंगे शिखर धवन को। Maybe Shikhar Dhawan could lead, maybe you could see Rishabh Pant come back, maybe you could see, what else could you see? You could see the other guy, what's his name? Maybe yeah, KL Rahul might lead also, you never know. 20 teams खेलेगी T20 वर्ल्ड कप। Wow, that's a lot of teams. Wow, that's a lot of teams. ये टूर्नामेंट इतना लंबा वो भी वेस्ट इंडीज और अमेरिका में पड़ने वाला है। नॉकआउट में डाल दो यार, मुस्तफा भाई का फॉर्मेट डालो यार वापस। Dude, no, 20 teams, bro. That's a lot. So there will be like four groups. Four groups of five. वैसा हो सकता है। So 5 groups of 4. Either way. Oh, that will be interesting. But right now it's all about this format, and this format is right now at I wouldn't say climax, but building towards the climax. Abhi knockouts are approaching. This is the week now, I think, where a lot of things will turn, change and everything. Starting tomorrow, India South Africa बहुत बड़ा मैच है। Make sure you hit the like button, subscribe button. हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी मैचेस को जाके ग्राउंड से कवर करेंगे वो ट्राई करेंगे, स्पेशली नॉकआउट सेमीफाइनल ट्राई कर लेंगे हम लोग। तो वहाँ से फैंस इंटरेक्शन रहेंगे, अगर आप लोग हैं वहाँ पे भी आप मिल सकते हैं, और आप हमारे व्लॉग्स भी आना है। तो मुंबई से तो पुणे तो आते हैं। हाँ, थोड़े डिले हो गए व्लॉग्स, मगर वो भी आएंगे कल परसों में, वो भी ज़रूरी है देखना आपका। एंड इंस्टाग्राम पे भी हम लोग शॉर्ट्स बनाएंगे। कल बैठ के फैज़ भाई भी ट्रैवल कर रहे थे, तो अभी बैठ के हम लोग करेंगे। यूएसए ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ होम टीम। कनाडा डिड दे क्वालिफाई? कनाडा में नहीं है, कनाडा का वर्ल्ड कप फीफा है, T20 में नहीं क्वालिफाइड है। यूएसए एंड वेस्ट इंडीज में है ना। But they didn't qualify in the 20 teams? I don't think they did. Shit. Why? I like gully cricket. I also love indoor cricket, like वो one tip. Yeah, one tip. ऐसा like वैसा माहौल बना देते हैं हम लोग, एक शॉट लेग ये गली वो लगा के खेलेंगे कल परसों, वैसा दिख रहा है। The neighbors don't complain, we'll play tennis ball के साथ। That's I love that. घर पे वो beat out नहीं रहता। ये हॉल में खेलते हैं। हॉल में खेलना beat out, वो मेरा favorite है। But gully cricket also I love. We'll play gully. We played in the not gully but मैदान में खेले थे recently. But yeah, I think that pretty much wraps it up. Any final thoughts do you have? अभी 3 बज गए, नहीं 2:45 हो गए। हाँ, बस थोड़ी देर में मैच है and आप लोग भी रेस्ट ले लो। सुधा शुक्रिया बहुत बहुत, आप लोग जग रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हम लोग क्या करें, सैटरडे नाइट भी वो भी जग रहे हैं आप लोग, बहुत बड़ी बात है, और हमारे को इतना सपोर्ट है, बहुत दिल से खुशी है। एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड हैप्पी बर्थडे विराट। हैप्पी बर्थडे विराट कोहली। और एक क्वेश्चन है, ये ध्रुव भाई मेरे को पसंद आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई। तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट्स तुम्हारा देखने का या वो खेलने का? देखने का मेरा है क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। खेलने का मेरा है पैडल बॉल, फिर है टेबल टेनिस, फिर बैडमिंटन, और फिर क्रिकेट, और फिर फुटबॉल। क्या बात है, रैंकिंग सिस्टम भी बनाई हो सब। ही knows what to answer when. Exactly. And yeah, I mean that pretty much wraps it up. Thank you everybody. Hopefully India कल जीते, top of the table maintain रहे। We see all whatever combinations permutations हम सोच रहे थे हो हैं। And Rahul Dravid did say certain someone might bowl on his birthday, so let's see. I mean कल विराट कोहली 2-3 विकेट निकाल ले रहा है, मजा आ जाएगा।
बट टिल देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए. इट वाज नाइस मीटिंग ध्रुव भाई, नाइस मीटिंग स्पोर्टी क्लब को. बहुत टाइम के बाद हम लोग देखे. तेजस भाई अगेन कल का लाइव करेंगे बहुत साथ में मुस्तफा भाई. हाँ तेजस पूछे भाई अभी. के आने मेरे को आज पूछे तो हाँ भाई जुड़िए आप भी हमारे साथ लाइव तेजस भाई, tomorrow. और आप लोग भी जुड़िए लाइव. कल हम लोग करेंगे थ्रू आउट द गेम. होपफुली विल डू यू नो पंटर अब्दुल रहमान ऑल ऑफ यू गाइस. Yeah. एंड जाते जाते क्या बोल रहे हैं आप लोग नोटिफिकेशन की घंटी मार दो, फिर आप लोगों को मालूम है आता हम लोग लाइव आ रहे हैं बोल तो के. थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट. टेक केयर.